ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे, ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर, लगभग കുടുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ചെയ്താണ്. ഇത്തവണ 30ഓളം മുതലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കടലിൽ പോയ വള്ളം കടലിൽ കുടുങ്ങി. 19 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെയാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. 30 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വള്ളത്തിലുണ്ട്. വള്ളത്തിന് ചോർച്ച ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു. ഉമേഷ്, വീണ്ടും ഒരാശങ്കയിലേക്ക് മുതലപ്പുഴ കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഏത് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് കരയിലേക്ക്? ഓരോ ദിവസവും മുതലപ്പുഴയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് മുതലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ കടലമ്മ എന്ന ബോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കയറി ഏകദേശം കരയിൽ നിന്ന് 19 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. തുണിയും മറ്റ് സാമഗ്രികളും വെച്ച് ഈ ബോട്ട് അടച്ച് തിരികെ വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്നാണ് താൽക്കാലികമായി പതിയെ ഇപ്പോൾ തിരികെ കരയിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കരയിൽ നിന്ന് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി. എന്തായാലും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. 30 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് നിലവിൽ വള്ളത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് വിവരം. എന്തായാലും കരയിൽ നിന്ന് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള കടലമ്മ എന്ന ബോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാരണം വലിയ ഉമേഷ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അപകട സാധ്യതകളുടെ വാർത്തകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ടോ? ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷനോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? കൂടുതൽ രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ മന്ത്രിതല ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് 24 മണിക്കൂറും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഈ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ബോട്ട് കടലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 19 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ബോട്ട് കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണ് എന്നാണ് അനൌദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്താണ് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ചെറിയൊരു പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗമാണ് ഈ തുണിയും മറ്റ് സാമഗ്രികളും വെച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ നിലവിൽ പൂർണ്ണമായി അത് വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് ദൂരം ഇവർ 19 ये है इनका राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को आज सत्य के दांव पे आज भूल चुका है। ये राष्ट्रवाद है कि जो आज देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज उत्तर पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बातें हैं सारे अभी तक नाकाम रहे हैं। एनआरसी की बात करते हैं, आज तक एनआरसी असम में लागू नहीं हुआ। सीएए की बात करते हैं, ऐसा एक माहौल वहां पे हुआ कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री असम नहीं जा पाए। नागा पीस फ्रेमवर्क 8 साल हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस फ्रेमवर्क में हुआ क्या है। गृह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं। क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शांति की अपेक्षा करें? ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी कि अगर आप समाज, जाति, धर्म के आधार पर बंटवारा करें। आपको साथ में लेना पड़ेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि 2 उत्तर पूर्वांचल के राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पे गोली चला रहे। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है। इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है, इन्होंने कहा था। आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। पहला,
उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर जब हम चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितना आए, कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हाँ, हमने ये बात हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं,
जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लालडेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लालडेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने। और निर्वाचन यह है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मीजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे, इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं करते? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है। 3 हमारी याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना 2 कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे।